Hello and welcome to Nico Original News Stories. It's a Saturday. Do remember to watch our bulletin every Monday, Wednesday, and Saturday on Nico mobile app, on our YouTube channel, and on our Facebook page. Let's start with the coronavirus updates. There are 65 active COVID 19 cases in Andaman and Nicobar Islands now. Recently, 3 confirmed cases have been detected, and 3 positives have successfully recovered. Altogether, the islands have witnessed 119 cases from the start, out of which 54 have recovered with 0 deaths so far. Recently, rumors had spread about a death of a COVID 19 patient, which was clarified by the nodal officer COVID 19, and it was informed that no COVID related deaths have occurred in the islands yet. Let's move on to the next story. BSNL Andaman and Nicobar Islands had promised the launch of high-speed internet in Andaman and Nicobar Islands on 1st July. The speed of the broadband since then has increased a bit, but mobile data has been the same. Nico had a telephonic conversation with the Chief General Manager of BSNL, and he informed us that the President of India will be launching the services from New Delhi. So BSNL will have to wait for the inauguration before the services are started. Let's listen in to what the CGM has to say. So, sir, our first question was, sir, mobile data in and around Port Blair is still not up to the mark now. So, can we expect better mobile data in coming days? Yeah. Now we are telling Yes. that President will inaugurate Okay. from Delhi. Okay. So, okay. That's why now we have to wait for President. Okay. So, sir, now the 90 days of, free cost has been given, free bandwidth cost has been given to all the DOT licensees, right? So, is the BSNL planning to, pass on the benefits to the consumers? The 90 days of free bandwidth has been given to all DOT licensees by USOF. So is BSNL planning to pass the benefit to the consumers here? Definitely. Okay. But what is the you want free service for 90 days? Not free service, at least passing on some benefits, right? Yeah, we'll pass on. Okay. We'll, And sir, since BSNL is a project, agency which is implementing the project, so has any other private operators approached for starting the services through CAN UFC or migrating to CAN UFC for the services here? Yeah, definitely. It is open to all, to the private also, and the same So sir, any expectations on when Airtel or Vodafone can start their 4G services or any other? Yeah. They are all getting ready their network. Okay. So it might take some. Okay. Yeah. So sir, because of all this COVID and all that. Yes. I thought everybody would have started together. Okay. But अभी COVID वगैरह के वजह से संकट पड़ गया. Okay. Sir, broadband has improved a lot and consumers are also happy. We have only given very less for test and trial purpose. We give more. Still consumers are very happy. And the only concern with consumers, concern for consumers is the billing now because they are getting good data speed. They are going to utilize a lot of data. अभी नया प्लान बना रहे हैं. Okay. Definitely. इतना ज्यादा रेंटल होगा करके we are not expected. Okay. So there any subsidy or anything from USAF or any other government agency that you are getting more? No, subsidy Yes. is actually not there. That's what it came as a very rude shock. Okay. So BSNL wasn't expecting it. उन्होंने केबल अपने खर्चे से बना दिया. जी. But for operating the cable, they are not subsidized. Okay. Sure, sir. Thank you so much. Still, इतना पैसा they put for rental. Okay. Sure. We want the rental to be reduced by at least. Okay. So BSNL is representing only 1/4. Okay. State also. Actually, we are expecting. Okay. 1/10 only. अभी 5 crore मांग रहे हैं उसके जगह we were thinking it will be 50 lakhs. Okay. अभी देखिए 10 it is 10 times more, right? Okay. Going to affect everyone. इसी के डर से वोडाफोन ने
ड्रॉप कर दिया आइडिया. Okay, sure, sir. So thank you, sir. Okay. Thank you so much, sir. Port Blair city has been undergoing serious water crisis, and now that the city has received a bit of rain in the last few days, the residents have hope that the normal water supply schedule will be restored soon. NICO team contacted the chairperson PBMC to get updates about the water supply schedule in the islands and the future plan of PBMC to mitigate the crisis. Let's listen into what the chairperson PBMC has to say. अंडमान निकोबार में सब जगह भी वाटर क्राइसिस चल रहा है. पोर्ट ब्लेयर सिटी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है. यहाँ तक कि नौबत आ गया था कि हडबे से हमको वेजल्स के द्वारा मतलब पानी यहाँ पे लेके आना पड़ा था. तो पीबीएमसी ने काफ़ी अच्छे से उसको मैनेज किया है. तो अब क्योंकि रेंस थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है, तो कब तक हम जो वाटर नॉर्मल सप्लाई वाटर का हम सोच सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में होगा. वाटर लेवल जो है 50 मीटर तक पहुंचने से थोड़ा नॉर्मल कर सकता है. 52 मीटर बराबर लेवल आने से हम लोग पुराना स्थिति है वो स्थिति में कर सकता है जो अल्टरनेट डे में दिया था. 50 होने से 1/4 डे तक कर सकता. पहले तो 48 मीटर में चले गया था, फिर धीरे धीरे बारिश गिरा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा. आज अभी कल का रिपोर्ट है, कल 49 तक आ गया. हम लोग 52 पहुंचना है, जरूरी है. 52 पहुंचने से ही हम लोग नॉर्मल सप्लाई में आ सकता. पहले तो इस तरह स्थिति कभी नहीं पहुंचा है अभी बहुत साल से. अभी 52 के नीचे 50 के नीचे जाने के बाद में सब पंपिंग में चल रहे हैं सर. वाटर को. अभी जो है लाइक धरनीखाड़ी डैम के ऊपर हम टोटली डिपेंडेंट है. तो आप लोगों ने बीच में रटलैंड भी विजिट किया था. तो क्या वो प्रोजेक्ट अभी कॉन्सेप्चुलाइज हो जाएगा या मतलब और भी पीबीएमसी कोई तैयारी कर रहा है कि आगे वाटर क्राइसिस को कैसे मिटिगेट कर सकें? रटलैंड प्रोजेक्ट जो है बढ़िया प्रोजेक्ट है. वो समुद्र के अंदर पाइप बिछाने का काम बाकी है. बाकी दोनों साइड का काम कंप्लीट हो चुका है. हम लोग विजिट करके देख के आया. सोर्स भी बहुत 3-4 जगह का सोर्स है. उसमें हम लोग एक ही सोर्स जाके देखा था. सभी सोर्स में थोड़ा पानी आता था. अभी वो टाइम एकदम जब सब सूख गया वही टाइम में पानी आता था. तो उधर से फिर हमारा ऑफिशियल्स कांटेक्ट किया तो वहाँ से 5 MLD पर डे मिलने का उम्मीद किया है. और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी टेंडर सब फाइनल कर दिया. वो काम अभी 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा करके एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया है. होपफुली खत्म हो जाएगा तो हम लोग 5 MLD बेनिफिट हो जाएगा वहाँ से. Port Blair city has been slowly recovering from COVID-19 and the public transportation in the city and the outer areas were restored. But the private bus operators of the islands have again stopped their services in the South Andaman district. And the public is bearing a lot of inconvenience because of the non-availability of adequate public transport. NICO team contacted the office bearers of the Andaman and Nicobar Private Bus Owners Association. Let's hear from them the reasons for stopping the private bus services in the islands. सर, पोर्ट ब्लेयर के जितने भी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं सब ने अपना बस को अभी फिर से जो है रोक दिया. बस सर्विसेज अभी आप लोग नहीं चला रहे हैं. तो क्या आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो आप लोगों ने बस सर्विस फिर से रोक दिया? नमस्कार, हम प्राइवेट बस ओनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ. मेरा नाम नीलम है. जैसा आज का हम लोग तो मुश्किल है, जैसा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं रोका है, हम लोग अपना तकलीफ के लिए रोका है कि हम लोग फ्यूल इंक्रीज़ हो गया करके हम लोग नहीं चला पा रहा, लॉस है, इसलिए रोक के रखा है. जैसा हम लोग सारा मीडिया को भी बता दिया है, या अपना सारा एसोसिएशन मिल के ये काम कर रहा है कि हम लोग नहीं सकता, लॉस है और हम लोग नहीं चला पा रहा है. और ये इसका प्रॉब्लम तो हम लोग बता दिए मीडिया में. ये आपको जो भी है हमारा सेक्रेटरी है वो बताएगा. तो फ्यूल का बारे में जो भी है ये भी चाहिए बताएगा. हम लोग जब से बस को ऑपरेशन स्टार्ट किया है तो हम लोग नियर अबाउट 20 to 25 डेज चलाए. और जब हम लोग स्टार्ट किए तो फ्यूल का कॉस्ट था 59 रुपीज़. बट नाउ डेज द फ्यूल इज हाइकिंग डे बाई डे एट द रेट ऑफ 69 रुपीज़. बट हम लोग तो जनरल कम्यूटर्स को सर्विस तो प्रोवाइड करना चाहते हैं और हमसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि इंक्रीज द फ्यूल रेट, हाई प्राइस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट एंड स्टाफ सैलरी, इन सभी को हिसाब करिए तो हम लोग बस डे टू लाइफ को चला नहीं पा रहे हैं. तो इसका वजह से हमारा जो स्टाफ्स लोग हैं नियर अबाउट एक बस में 4-5 स्टाफ्स हैं. तो कुल मिलाकर हमारे 800 फैमिलीज है इसके ऊपर फुल एंड फुल डिपेंडेंट है. तो इसका वजह से हम लोग का रोजी रोटी जो हम लोग का लिवलीहुड जा रहा है, लॉस हो रहा है. हम लोग इसीलिए 60 to 80 किलोमीटर के लिए 20 रुपये का फ्लैट रेट दिया था डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने.
तो 18 to 16 किलोमीटर to 18 किलोमीटर तक के लिए 20 रुपये का मांग रखा था हम लोग, तो हम लोग उसके लिए अग्री है। बट जो बसेस जा रही है अबरडीन बाजार से फ्रायरगंज, उसका एग्जिस्टिंग फेयर है 37 रुपीज़, तो वो बस एग्जिस्टिंग फेयर 37 होते हुए 20 रुपये में चला नहीं पाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। Ever since the lockdown was imposed, the worst sufferers were from the low-income groups. The drivers and conductors of the private buses plying in the islands also suffered a lot. And now that the operation of the private buses have again stopped, these people are left without any income. Nico team approached the president of the Private Bus Drivers and Conductors Association. Let's hear what they have to say. सर, आप सबको मालूम है हम लोग प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का प्रेसिडेंट है आर श्रीनिवासन। अभी पिछले जब लॉकडाउन हुआ मार्च महीना 19 तारीख से, उसके बाद से अभी तक फिलहाल जून महीना 8 तारीख तक हम लोग को कोई रोज़गार नहीं था। क्या वजह से कोविड-19 हुआ, उसकी वजह से पूरा ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन हो चुका था। तो हमारा जितना भी ड्राइवर कंडक्टर्स है 800 मेंबर्स लोग हैं, 800 मेंबर्स को ये 3 महीना में जो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, ना प्रशासन की तरफ से ना यहाँ के किसी की तरफ से कोई भी हमारा तरफ से कोई मदद नहीं मिला था। उसके बाद जब हमारा ओनर एसोसिएशन की तरफ से जाकर बातचीत करने के बाद बस चलने का एक सुझाव दिया था कि आप लोग SOP का पालन करके बस चलाई करके, तो उसके हिसाब से हमें भी आदेश मिला कि आप आके बस निकालिए करके, तो हम लोग भी बस निकाल के चलाएँ। उसमें आके ओनर्स लोग बस निकालने से पहले ये बात बोल दिए थे कि हमें कि अभी पहले का तरह इनकम नहीं है, फिलहाल हम लोगों को रन करना बस को पहले। तो हमने भी उनका बात मान के हम लोग भी उनका बात मान के बस निकाला। जो हिसाब से हम लोग पर डे में एक ड्राइवर एक कंडक्टर का ड्यूटी मिलता था, उसमें आके हम लोग को अपना घर चलाने के लिए मुश्किल तो था, लेकिन थोड़ा घर चला सकते थे उस हिसाब में। तो हमारा ड्राइवर का जो उस समय हम लोग को जो पेमेंट मिलता था उसके हिसाब से देखा जाएगा तो एक ड्राइवर को एक कंडक्टर को 30 दिन में 15 दिन ही ड्यूटी मिलता था। उसमें हम लोग का सैलरी का हिसाब करेगा तो 9,000 रुपये ड्राइवर का होता था, कंडक्टर का 4,500 रुपये होता था। उसमें आप खुद ही जान सकते हैं कि इसमें आप एक परिवार कैसा चल सकता है। एक परिवार का 4 सदस्य होता है। अभी के टाइम तो स्कूल सब बंद है, बच्चों लोग घर में रहते हैं, उनका हर दिन खाने के लिए 100-200 रुपये ऐसे ही चाहिए। ड्राइवर का 900 रुपया में तो अपना राशन का आइटम ही 5,000 चला जाता है, फिर वो रेंट का पैसा कहाँ बंधेगा। तो इस तरह तकलीफ बहुत सारा हुआ हमारे बीच में। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर हम लोग एक आदमी भी ज़्यादा दिन से बस के पीछे आके बस को ड्राइवर को तुरंत कार्रवाई करता था, जिसकी वजह से 4-5 बस भी सस्पेंड हुआ था। ड्राइवर को भी इंस्ट्रक्शन दिया कि आप दोबारा इस तरह गलती करेंगे तो आप लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा। तो इसके हिसाब से ओनर लोग अपना जो बढ़ती हुई कीमत डीजल का ये देखते हुए कि जब हम लोग 8 तारीख को बस निकाल लेते हैं उस टाइम में डीजल का दाम आकर 58 रुपीज़ था, तो उस हिसाब से उन लोग चलाएंगे करके बोले। लेकिन अभी का मूवमेंट 71 रुपीज़ हो गया पर लीटर। अभी उस लोग भी तो अपना हाथ का पैसा डाल के कितना दिन चलाएगा, उस लोग भी फिर भी चलाया 8 दिन चलाया, लेकिन उनसे होता नहीं था। तो उस लोग अपना तरफ से डिमांड रखे कि टिकट रेट इंक्रीज करके देगा तो ड्राइवर कंडक्टर को जीवन का और उनका घर चलने का और भी कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि 9,000 में किसी का परिवार नहीं चलेगा। तो ये दिक्कत का सामना करते हुए उन्होंने अपना 1 तारीख से बस बंद करने का ऐलान किया था। हम लोग भी उनका साथ दिया, समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको 2 पैसा मिलेगा, हमें भी अपना घर चलाने का रास्ता खुलेगा। तो इसी के लिए हमारा यही है ड्राइवर कंडक्टर की तरफ से कि जितना जल्दी हो सके हमारा जो डिमांड है ओनर्स एसोसिएशन का वो तुरंत पूरा करें, ताकि हमारा 800 परिवार ड्राइवर कंडक्टर का उनका कुछ रोज़गार हो सके और हम अपने घर का परिवार को अच्छा सुख और शांति से जी सके। That's all in today's news bulletin. Download the Nico app, subscribe to our YouTube channel and follow our Facebook page for the latest Andaman and Nicobar Island news updates. Do remember to share our bulletin with your friends and family. Thank you.